पूरक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। वडड़ चाल चुलंबड़, ना वड़ा लइए किस, नाउ लइए परमेश्वर। अन्नन करण समरथ, हर हट पी तू तू करें। बोले पड़ी बाण, साहिब सदा दूर है। क्या ऊंची करें पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया। तिस विटों कुर्बान, आप छोड़े ताशह मिले। सच्चा एहो विचार, हाँ मैं फिका बोलना। बुझ ना सका कार, वाण तृण त्रिभुवन तुझे ध्याएंदा। अन दिन सदा विहान, बिन सतगुर किन्है न पाया। कर कर थके विचार, नदर करें जे अपनी। ता आपे लहै सवार, नानक गुरमुख जिनी ध्याया। आए से परवान, नदर करे जे अपनी। ता आपे लहै सवार, नानक गुरमुख जिनी ध्याया। आए से परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक
ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਵਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੰਗਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੁ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ
ਮੁਜੱਸਮੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਡੜਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲੈ, ਵੱਡੜੇ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ,
ਝਾਲ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਝਾਲਾਂਗਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਲੋਢਾ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੜੇ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਝਾਲ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਝਾਲਾਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਝਲੁੰਬਲੇ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਝੁੱਸ ਮੁਸਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਲੁੰਬਲੇ। ਨਾਵੜਾ ਲਈਏ ਕਿਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਉ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਨਨ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਤ ਸੁਨ ਧਰੈ ਪਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਬਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਲਲ ਸੁਬਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਲਲ ਸੁਬਹਾ। ਅਲਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਲਲ ਸੁਬਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ। ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3:42 ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3:42 ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੀ। ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਖੋਜ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਆ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
इंद्री है, उन्होंने इंग्लिश विच ग्लैंड कहा गया। हाइपोथैलमस उहदा नाम है, हाइपोथैलमस जा करके गूगल ते सर्च करियो। हाइपोथैलमस ग्लैंड है। इस ग्लैंड दे विचों, इस इंद्री दे विचों जदों 4 वजे तो लैके 5 वजे का समा हुंदा, जदों असी उठदे हैं अमृत वेले, इस 4 वजे तो लैके 5 वजे तक इस इंद्री दे विचों 16 किस्म के वखरे वखरे हारमोन जिहड़े है वो निकलते हैं। और ये हारमोन जिहड़े है सारा दिन साडे शरीर की तंदुरुस्ती दे वास्ते लाभदायक है। ये विग्यानियां दा, मैडिकल साइंस की एक खोज है अमृत वेले दे बारे कि वो जिहड़ा समा सवेरे 4 बजे तो लैके 5 बजे का समा, उस समय हाइपोथैलमस जिहड़ा ग्लैंड है उहदे विचों 16 किस्म के हारमोन्स निकलते हैं। वैसे तो हारमोन सारा दिन ही निकलते हैं उस चों, लेकिन वो एक समा ऐसा है जिस चों ये इकट्ठे इक्को बार निकलते हैं। और ये 16 किस्म के जिहड़े हारमोन्स हैगे है ये पूरा दिन साडे शरीर की तंदुरुस्ती ते क्रियावां करन दे वास्ते लाभदायक है। ये मैडिकल साइंस की खोज है। आओ हुण आपां धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के मुताबक, महाराज कहंदे पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, रात दे कहंदे पहले पहर दे विच तेरा फुल बनेगा। कहंदे पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, फिर सारी रात कहंदे उस फुल दा बनेगा फल। क्योंकि सिखा तेरी जिहड़ी भुख है वो फुल ने नहीं मिटाउणी, वो फल ने मिटाउणी है। एक पासे साडे कोल फुल होवे, एक पासे साडे कोल फल होवे, असी फुल खावांगे ते साडी भुख नहीं मिटेगी, फल खावांगे साडी भुख जिहड़ी है सानू अंदर कुछ आसरा होवेगा। बाबा फरीद जी फरमाउंदे पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੂਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲੇ। सिर्फ 3 अखरां दी आपां विचार कर रहे हैं, वडड़े झाल झलुंबले। महाराज फरमाउंदे पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। एक साखी दे नाल आपां सौखा काम कर लईए। अमृत वेला सीगा साध संगत जी, ते बीबी अमरो जी दुध रिड़क रहे है। ते जदों दुध रिड़क रहे हैं, दुध रिड़कदियां गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द मारू राग दे विचों पढ़ रहे हैं। इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा, तुसीं देखो उस समय सिखां दा जीवन किड्डा कु उच्चा होऊगा जिन्हां नूं जपजी भी कंठ होएगी, लेकिन जपजी तो इलावा मारू राग का शब्द पढ़ रही है बीबी अमरो जी। किन्नी कु उन्हां नूं बाणी जिहड़ी है वो कंठ होवेगी। शब्द सीगा करनी कागद मन मसवानी बुरा भला दोए लेख पए। ये शब्द पढ़दियां पढ़दियां जदों शब्द आया, पंक्ति आई भया मनूर। मनूर दा अखरी अर्थ की है? मनूर उस लोहे नूं कहा गया जिस लोहे नूं जंगाल लगा होया, जिस लोहे की कीमत बाजार दा विच तां की उन्नू तां कबाड़िया भी नहीं खरीददा। भया मनूर, और वो लोहे नूं कबाड़िया भी नहीं खरीददा। वो लोहा किसी जगह ते पिया ते अपने आप खुर रहा ते उहदे विच सुराख हो रहे, उस टुकड़े दी होंद जिहड़ी आ हौली हौली खत्म हो रही है, वो मिट्टी विच मिल रहा। भया मनूर, इनू क्या है मनूर? जंगाल लगा होया कोला। जदों ये पंक्तियां बाबा अमरदास जी ने सुनिया ना अमृत वेले, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुरु मिले तनेहा दौड़ के आगे कहंदे धीए
ये तू जेड़ा शब्द गा रही है, ये शब्द तो मेरे उपर पूरा ढुक रहा, मैनू दस वो केड़ा गुरु है, उस गुरु कोल केड़ी करामात है जिहदे करके मनूर वर्गा जेड़ा मन है ना वो भी सोने वर्गा हो जावे और ओदी भी कीमत जेड़ी बाजारां दे विच पै जावे। पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओह देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। ओ केड़ी अमृत रूपी बूंद है, ओ केदे कोलों मेरी धीए मिलनी है, जिहदे करके मेरा अंदर जेड़ा तृप्त हो जाना है। ते बीबी अमरो ने कहा, कहंदी सत्कारयोग पिता जी, रिश्ते दे विच उन्हां दे बजुर्ग सौरा साहब सीगे, ते उन्हां ने कहा पिता जी ये शब्द है धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दा, कहंदे धीए मैनू उत्थे लै जा, मैं उन्हां नू मिलना चाहुंदा। कहंदे इस वेले ओ तां नहीं हन, लेकिन उन्हां दी जोत धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे विच विराजमान हन, और ओ खडूर साहब दी धरती ते पया मनूर। सा संगत जी, एक सी अमृत वेला, दूजी सी अमृत बाणी, तीजी सी बीबी अमरो दी अमृत रसना, ते चौथा सी उन्हां दा हिरदा, जेड़े अंदर एक तड़प सीगी कि इस तरह दे कोई हालात बनन जेड़ा मैं अंदरों सड़दा पिया हां, किते मेरे अंदर भी निर्मल रूपी जल मिल जावे, जेड़ी अगन मेरे अंदर लगी आ ओ बुझ जावे। जिन्नू गुरु नानक देव जी कहंदे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। एक अमृत वेला, दूसरी अमृत बाणी, तीसरी बीबी अमरो दी पावन पवित्र रसना, ते चौथा उन्हां दा हिरदा। जदों इन्हां चारां दा मेल होया ना, ते हालात बन गए कबीर। सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परिया, लागत ही पोए गिर परिया, परा कलेजे शेख। एक शब्द दे नाल ही बाबा अमरदास जी विन्ने गए, और ऐसे विन्ने गए 12 साल दी काल कमाई तो बाद पातशाह बने, गुरु अमरदास जी बने। इत्थे महाराज फरमाउंदे वडड़े चाल झलुंबलै। सा संगत जी, एक साडा लाना ये भी कहना शुरू कर दिता कि हर वेला ही अमृत वेला है, तुसी जदों मर्जी बाणी पढ़ लो। सा संगत जी, इस समय जिहड़े अमृत वेला सानू किसी का फोन नहीं आउंदा, पहली गल कोई डिस्टर्बेंस नहीं हैगी। दूसरा जिहड़ी गल मेन है, 4 वजे तां हस्पतालां दे विच जिहड़े रोगी जिहड़े सारी रात अपने जख्मां तो उन्हां नूं तकलीफ और वो कुरलाउंदे पए ना, वो भी तकरीबन 4 वजे सौ जांदे आ। अगे चलीए, ਜਿਹੜੇ चोर सारी रात चोरी करते, जिन्हां दे शरीर दे विचों विषे ते विकारां दियां तरंगां निकलदियां, वो भी साध संगत जी 3 वजे तो बाद सौ जाते हैं। इस करके वो जिहड़ा वेला ना, वो एक सुहावना वेला है। उस वेले दे विच किसी किस्म की कोई हवा दे विच विषे ते विकार नहीं। इसलिए महाराज कहंदे अमृत वेला तेरे वास्ते। हाँ चलो आपां एक गल कहीए, जे मैं नहीं सांभदा ते इहदा मतलब ये नहीं कि अमृत वेला नहीं हैगा। मेरी गल समझ गए ना? जे मैं नहीं सांभदा, मैं अपनी ही गल करा, ते इहदा मतलब ये नहीं कि अमृत वेला नहीं हैगा। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज तां कहंदे है कि तैनू अमृत वेले तो पहला तैनू वाजां पैणियां शुरू होईयां, पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद। उन्होंने गुरु नानक देव जी वाजा मार के दिंदे आ, कहंदे पुत तू अमृत वेले आया, तू बाणी पढ़ी है, बाणी सुनी है,
ते आ चीज़ां मैं तेरे वास्ते पंडां बन्नियां पुत जांदा जांदा लै जा। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े। गुरु नानक देव जी ने रथ ते ए बन के रखे हुए है। फिर महाराज कहते जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले, तिन को सद मिले। अज दा जिहड़ा हुक्मनामा दरबार साहब तो आया ना, वो भी अमृत वेले ही गुरु नानक देव जी ने तुलंबे की धरती ते सज्जन ठग नूं सुनाया ते ओदे पिछों ठग शब्द उतार के ते ओ गुरु नानक दा महापुरुष जां कह लीए उन्हां दा सेवक ही बन गया, उन्हां दा चेला बन गया, सज्जन चेला बन गया। जिन्हों महाराज दा शब्द सी उजल केहा चिलकना घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरे जे सो धोवां। ते अगे चलिए महाराज फरमाउंदे, महाराज कहंदे वडड़े चाल झलुंबलै चालांगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे उपाद। महाराज गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते अमृत वेला साम ते भाई साहब जी कीर्तन कर रहे सी, 7 बजे का समा सी शायद, ते भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सन। साडे हालात की है, बुरे काम कहू ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। ये साडे हालात। जे किते सुवाणी अमृत वेले आवाज मार के कह दवे कि आ कारा बाहर हो गया, गवांडियां दे घर च हो गया, उठ के दौड़ जांदा। ते जे किते अमृत वेले गुरु नानक देव जी आवाज मारन ते कहंदे लारम नूं कहंदे चुप कर जा, हले होर सौ लैंदे। बुरे काम को ऊट। इस लिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्लोक सहस्कृति वे सानू समझाउंदे आ, नह बिलंब धर्मंग, धर्म की कमाई करन वास्ते सिखा देरी ना कर, ते बिलंब पापंग माड़े कर्म करन वास्ते कहंदे रुक जा, कहंदे बैठ जा, कहंदे हो सकदा तेरा रुकिया तेनू सलाखां दे विच जाण तो तेनू बचा लवे। नह बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग। महाराज इत्थे फरमाउंदे वडड़े झाल झलुंब लै नावड़ा लईए। ते वैसे गुरु रामदास जी महाराज तां इहो ही कहंदे आ, गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो पलके उठ हर। महाराज ने ते गल ही सारी निबेड़ दित्ती है। सिख ही ओह है जिहड़ा अमृत वेले उठ के ते बाणी जिहड़ी है ओह पढ़दा। वडड़े चाल झलुंबले नावड़ा लईए किस नौ लईए परमेसरै भन्नन घड़न समरथ। हुक्मी साज करे तन खे। बस एक कोई प्रमाण दे के मैं अगे चला, क्योंकि अगला श्लोक भी बहुत बख्शिश वाला श्लोक। वैसे तो साध संगत जी बाणी दा एक एक शब्द जेड़ा ना वो समा मंगदा है, वो विचार दे लई समा मंगदा है। दास ने एक किताब लिखी है, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी। इस दी व्याख्या दास ने की सी आस्ट्रेलिया की धरती ते 550 साल ते। उन्होंने मैं लिखती रूप देने की कोशिश की है। ते जदों लिखती रूप देने की कोशिश की है तो जिहड़ी कथा की सी उहदे विच ते लिखती रूप दे विच बड़ा फर्क है। क्योंकि विचार जदों किसी शब्द की आपां गहराई विच जाने आ ना, ते फिर वो शब्द सानू अपने अपने आप दे विच अपने समुंदर दे विच ऐसा समो लैंदा कि जिन्ना तुसी गहरा जांदे हो उहदे चों ओने हीरे ते मोती जिहड़े आ ओह तुहानू प्राप्त हुंदे। अगला श्लोक महाराज फरमाउंदे, हर हट भी तू तू करहै बोले भली बाण। हर हट शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच कुछ प्रतीक हैं जेड़े पुरातन समय दे सीगे, वो अज अलोप हो रहे हैं। मैं इत्थे भी इसे स्थान ते 3 ਤੋਂ 4 साल पहला बेनती की सीगी कि इन्हां प्रतीकां नूं संभालण दी लोड़ है। आसा की वार दे विच पंक्ति आउंदी है, महाराज कहंदे है कोलू चल रहा, चक्कियां चल रही, चक ये कित्थों बच्चियां नूं आउण वाले समय दे विच दिखावांगे। जेकर लाटू मधाणियां अनगाह, लाटू की सीगा, मधाणियां की सीगियां, अनगाह जिन्हों आपां फले कहंदे सीगे, जिथे
अपने कणक नूं रखिया जांदा सीगा और उत्ते फिर जानवर जिहड़े चलदे सीगे फले उत्थों उन्हां दे दाणे जिहड़े आ ओह कढदे सीगे। मेरे कहण तो भाव कि कुछ ऐसे प्रतीक हन जिहड़े अज अलोप हो रहे हन और आउण वाले समय दे विच जदों ये चंगी तरह अलोप हो गए तो साडी जिहड़ी नवीं जनरेशन है ना उहदे वास्ते फिर इन्हां शब्दां नूं समझना मुश्किल हो जाना ते माफ करना किते ये ना होवे कि जिहड़ी जनरेशन है वह कहे ये तो चीज़ां ही है नहीं असी क्यों पढ़ीए। जिवें जिथे डिठा मृतको इल बहिठी आए, हुण इल तुसी कित्थों लभोगे? ये साडे प्रतीक है जिन्हां नूं संभालण दी लोड़ है। महाराज इत्थे फरमाउंदे हर हट भी तू तू करे। हर हट की है? खूह दे विच ओह चल रहा हलट, उस हलट दे नाल लगियां हुईयां टिंडां, ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਲਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਹਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਓਏ ਘੂੰ ਘੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਹੱਟ बेजान है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कोई जान नहीं है। लेकिन देखो गुरु अमरदास जी महाराज की अवस्था, वो बेजान चीज़ों के विचों भी परमात्मा नूं पुकारन की आवाज़ जिहड़ी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच पंक्ति आउंदी है, नेड़े दिसे मात लोक तुद सुझै दूर। सानू जिहड़ा मात लोक है वो नेड़े दिखाई दे रहा सी, उहदे विच ही हाँ, माया दे विच ही हाँ। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे तुद सुझै दूर, ये उन्हां दे अंदरों बाणी निकली है जिन्हां नूं आउण वाले समय दा पहला ही पता है। तुद सुझै दूर जिन्हों आपां कहने आ दे लंबी नदर निहाली है, ये उन्हां दे हिरदियां चों बाणी निकली। मैं एक दो प्रमाण होर दियां। बाबा फरीद जी कहते हौं बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल बसन रब ना छोड़न। अच्छा एक ना एक पढ़ाई है, एजुकेशन है भी जानवरां दे नाल गल्लां करनियां ते उन्हां दियां बातां समझनियां। वो पढ़ाई अज करते हैं साडे बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं, जाते हैं जंगलों के विच। ते मैं कदी हैरान होना कि बाबा फरीद जी किहड़ी यूनीवर्सिटी विच गए होणगे। बई बाबा फरीद जी किहड़ी यूनीवर्सिटी विच गए होणगे जिन्हों महाराज, फिर मैं वो पंक्ति लवां, तुद सुझै दूर। उन्होंने आउण वाले सब बाबा फरीद जी कहते हौं बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। वो ये कुछ खा के भी फिर भी परमात्मा दा नाम जपदे। अध गुला चिड़ी का चुगन, चिड़ी दी किन्नी को खुराक है। अध गुला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए, खसमे पावे ओही चंगा जे करे खुदाए। खुदाए खसमे पावे ओही चंगा जे करे खुदाए। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, बिन हर जापत नहीं है होर। गुरु रामदास जी महाराज कहते आ जिहड़े हिरन आ जिहड़े पंछी बोलते पे ना, मैनू ते इदां लग रहा ये भी रब्बा तेरियां ही गल्लां कर रहे, तेनू याद कर रहे है। बाबा फरीद जी ने आवाज सुनी, कोयल दी बड़ी प्यारी आवाज। मैं गल अवस्था दी कर रहा कि उन्हां दी अवस्था देखो कित्थे तक वो पहुंचे हुए है, जिन्हां दियां असी बातां पा के सुना रहे हैं। मैं आप जी नूं सुना रहा, मैं अपने आप नूं भी सुन रहा, अपने हिरदे नूं भी विन्नण दी कोशिश कर रहा, आप दे हिरदे तक भी पहुंचण दी कोशिश कर रहा। वो कित्थे तक पहुंचे है? वो तां कोयल दे नाल गल्लां कर रहे। कहंदे काली कोयल तेरा भला हो जाए, कहंदे तेरी आवाज इतनी प्यारी, तेरा रंग क्यों कहंदे काला। कहंदे काली कोयल तू कित गुण काली,
ते कहंदी अपने प्रीतम के हों बिरह जाली, मैं अपने खसम तो विछड़ी होई हां फरीद, मैं रंग मेरा काला वै। ये बाबा फरीद जी दी ते गुरु नानक देव जी की अवस्था देखो। श्लोक आप जी ने श्लोक 12 ते वधीक ओदी व्याख्या कर गए हो। बाबा फरीद जी गुरु नानक साहब जी कहते पब्बर तू हरियावला, दरिया दे नाल गल्लां करदे है। पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कह दोकड़े सड़ ओहे काली होइया देहरी। तेरा शरीर कहते क्यों काला हो गया? मैं लंघ के गया सी कुछ समा पहला, तू बड़ा वधिया सी, तेरे च पानी बड़ा निर्मल सी, कौल फुल तेरे विच कहंदे जिहड़े सीगे वो खिड़े पे सन, परंतु हुण मैं कुछ समय बाद वापस आया ते पानी भी सुक्या होया, तेरा रंग काला होया, गल की हुई तेनू? पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कह दोखड़े की तेनू दुख लगा सड़ ओहे काली होइया देहरी। ते अगों जवाब दिता नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा, जैसेती मेरा संग जिथ डिठे तन पर फुड़े चढ़े चवगन वन। गुरु नानक देव जी मेरे शरीर विच रुकावट आ गई है, जिहड़ियां नदियां दा पानी मेरे विच आ रहा सी वो रुक गया। सिखा इसे तरह जे दरिया दे विच नदियां दा पानी नहीं आ रहा, वो दरिया दा रंग काला हो गया, ते हालात साडे भी उही है जे साडे अंदर बाणी नहीं है। जे साडे अंदर महाराज फरमाउंदे हर हट पी तू तू करहैं, बोले है भली बाण, तू ते बहुत कहंदे वधिया तेरी मिठी आवाज है हर हट, तू परमात्मा दा नाम जप रहा। आगे महाराज फरमाउंदे साहिब सदा हजूर है, क्या ऊंची कर है पुकार। मैं पुकार ते थोड़ा जिहा बोलना चाहांगा। गुरु नानक देव जी महाराज दे आउण तो पहला ना इस धरती दे हर एक जीव ने परमात्मा दे अगे पुकार की। और मैं बेनती करा गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बह के असी भी जदों पुकार करिए ते महाराज सुनते हैं। मैं दावे ना कहना, वो साड़ी पुकार सुनते हैं। सब श्रेष्ठ सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। वो सुनते हैं साड़ी पुकार। कलमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए, फिर की होया सच्चे सुनिया कन दे, धीरक देवे सहज सुभाए। आ जड़ी मेदनी जो इस धरती ते पैदा होया सी जीव, वो कलमल होई है, बेहबल होई है। बेहबल हो के उन्हें अरदास की है परमात्मा दे चरनां दे विच। मैं इनू विषय नू लंबा ना करा। फिर की होया सुनी पुकार दा तार प्रभ, गुरु नानक जग माहे बिठाया। कहंदे फिक्र ना कर, मैं आप ही आ रहा, पर उहदा नाम रब नहीं होवेगा, उहदा नाम गुरु नानक होवेगा, उहदा नाम नानक होवेगा। आ रहा पंज तत्तां दे विच बन के आ रहा, पर मैनू रब नहीं कहना, मैनू नानक कहना। इस नू फिर भाई गुरदास जी कहंदे एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। इत्थे महाराज कहंदे साहिब सदा हजूर है, वो तां तेरे नजदीक है। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। हजूर दे अखरी अर्थ एक होर कीते है, हर जगह ते मौजूद। हर जगह ते मौजूद कर लीए जां नेड़े कर लीए, गल इको ही है। महाराज कहंदे कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। वो तां तेरे नजदीक है परमात्मा। असी एक गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा बचन पढ़ते हैं, काहे रेबन खोजन जाई सर्ब निवासी, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। साहिब सदा हजूर है, जह जह पेखूं तह हजूर, जह जह पेखूं तह हजूर, दूर कत हो ना जाई। वो तो साडे तो दूर ही नहीं है, ते तू उन्होंने कित्थे लभण चलिया। महाराज बाबा फरीद जी ही कहते हैं, बाबा फरीद जी कहते जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है। की लैन चलिया जंगलों दे विच, कहते जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है। जंगल क्या ढूंढे जंगलों दे विच क्यों? साहिब सदा हजूर है,
फिर अगे महाराज कहते क्या उच्ची करे पुकार, क्यों उन्नू तू कहते उच्ची कहते आवाजा मार रहा, कहते बड़े ध्यान दे नाल इस पंक्ति नू करना पवेगा। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा, एक तां ये प्रमाण है, इहदे विच शब्द है मुल्ला। साध संगत जी जदों साडा अंदर शुद्ध नहीं आना ते उन्नू भावां तू जिद्दां मर्जी पुकार, तेरी गल उन्हें नहीं सुननी। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। ते दूसरा बाबा कबीर जी का नाल ही बचन है, कबीर केसों केसों कूकी है, ये भी महाराज कह रहे हैं। पर ये जो अर्थ करांगे महाराज कहते हैं ये अर्थ है जो तेरा हिरदा शुद्ध है। आम तौर ते कह दिंदे है गुरुद्वारियां दे स्पीकर बंद कर दिओ, सानू डिस्टरबेंस हुंदी है। डिस्टरबेंस नहीं हुंदी, बाणी कहंदी है उन्हां दे हालात की है, नाम सुनत जन बिशु डसाना। जदों उन्हां दे कन्नां दे विच आवाज पैंदी है ना ते उन्हां नूं इदां महसूस हो रहा जिद्दां बिच्छू ने आके डंग मार दिता। नाम सुनत जन बिशु डसाना, जिद्दां बिच्छू ने डंग मारिया। इत्थे महाराज कह रहे जे तेरे अंदर पखंड है ते फिर उच्ची पुकारन दा कोई फायदा नहीं, ते जे तेरा हिरदा निर्मल है शुद्ध है ना, फिर बाबा कबीर जी कहते केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूक ने कब हु कह सुने, जरूर सुनेगा तेरी पुकार। कहते साहिब सदा हदूर है क्या उच्च ही करे पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसै विटों कुर्बान। जिन्ने ये सारी सृष्टि साजी है, सस्से सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया। पट्टी राग आसा महला पट्टी का पहला श्लोक महाराज कहते ये जिहड़ी सृष्टि है वो सारी उस परिपूर्ण परमात्मा ने कहते साजी हुई है। जिन जगत उपाय हर रंग किया, और फिर सृष्टि साज के उन्हें हर किस्म के जिहड़े रंग है ना, तमाशे खेल तमाशे जो भी है वो महाराज ने इत्थे बनाए। कहते मैं ओदे तो कहते कुर्बान जाना, तिसे विटों कुर्बान, मैं ओदे तो कहते बलिहार जाना। अगे महाराज फरमाउंदे आप छोड़े तां सहो मिले। बड़े ध्यान दे नाल कल भी दास की हाजरी सी सीसगंज साहब, उत्थे शब्द आया सीगा कि परिपूर्ण परमात्मा जदों तू उन्नू सिमरन करेगा ना, 52 अखे सोही चित चित वो चरनार बिंद ऊद कवल बिगसांत, प्रगट भय आपे गोबिंद। आपे वो परमात्मा आपे ही प्रगट हो जाएगा। इत्थे भी महाराज कह रहे हैं कि आप छोड़ तां सहो मिले। अपना आपा मैं जिहड़ी है अपनापन इनू कहते छड्ड ते तेनू कहते तेरे परमात्मा नाल तेरी कहते मिलाप हो जाएगा। हुण इत्थे मैं रुकना चाहांगा कि मिलाप कोई बाहरों आके होएगा नहीं। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है सबनी घटी सहो वसे। हर हिरदे दे विच परमात्मा वस रहा जी। सबनी घटी सहो वसे, सोह बिन घट न कोए, नानक ते सुहागनी जिना गुरमुख प्रगट होए। हर हिरदे दे विच परमात्मा है, लेकिन अंदरों ही उन्नू असी पैदा करना, अंदरों ही असी नूं उजागर करना। जिन्हों असी रोजाना पढ़दे हां सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए। लेकिन होएगा किदां? गुर साखी गुरु दी सिक्ख्या ते चल, वो जिहड़ी तेरे अंदर जोत है वो फिर कहंदे प्रगट होए। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। मैं इत्थे तां ये प्रमाण ले कि जिहड़ा सहो मिले शब्द है ना, सहो साडे अंदर है, बस उहदे नाल अंदरों ही मिलाप दी लोड़ है। जिन्नू बाबा कबीर जी कहंदे बंदे खोज दिल हर रोज, अंदर नू खोजण दी कहंदे गल महाराज करदे। अंदर है वो। एक होर असी
महीना चलिया फलगुन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आई संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। महाराज फरमांदे साहिब आप छोड़ है अपना आप कहंदे छड्ड कहंदे जे उस खसम नूं कहंदे मिलना चाहुंदा कहंदे अपना आप छड्ड अपना छड्ड आप छोड़े तां सह मिले सच्चा इहो विचार सब तो उत्तम कहंदे विचार कहंदे इहो ही विचार हैगी है कि अपना आप छड्ड तां तैनूं कहंदे ओ तेरा जिहड़ा खसम ना ओहदे नाल तेरा महाराज कहंदे आप गवाई है तां सो पाई है और कैसी चुतराई। एक होर मैं आप जी नूं प्रमाण दियां जदों असीं अपना आप छड्डदे ना इहदे अंदरूनी अर्थ करिए ਉਹ फिर साडे अंदर एक निमरता का भाव आ जाता जिन्हों बाबा फरीद जी कहते निवन सु अखर खवन गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बाणीकारां ने महापुरुषां ने रब्बी आत्मावां ने कोई भी सिक्खा साडा पासा जिहड़ा वो खाली नहीं छड्डिया वो खाली नहीं छड्डिया कोई पासा कोई सवाल करो महाराज कहंदे तू फिक्र ना कर हर एक दा मेरे कोल जवाब है। पर गुरु नानक देव जी कहंदे मैं देख रहा सारी धरती दे हालात पता की है ऊंदो कबल उल्टिया फिरदा परमात्मा दे वल्लों ऊंदो कबल सगल संसारे दुरमत अगन जगत पर जा रहे दुरमत अगन दुरमत दी अग दे विच आप भी सड़ रहा ते छोटी जी गल कर रही है अपने परिवार नूं भी साड़ रहा जगत की ते गल ही दूर दी है क्योंकि तीली नूं जदों अग लगदी है ना जदों ओनूं असीं कहने माचिस बालीए तीली बालीए अग लाउण वास्ते वो कहंदी भलिया बाद च अग ते बाद च लावांगी मैं पहला मैनूं अपने आप नूं सड़ना पैना। ऊंदो कबल सगल संसारे दुरमत अगन जगत पर जा रहे फिर महाराज कहंदे घबरा ना सो उबरे जो शब्द विचारे मैं तेनू इस अग दे विचों बाहर कढ लवांगा लेकिन जदों तू शब्द दी विचार दे नाल जुड़ेगा आप छोड़ है तां सहो मिले सच्चा इहो विचार होमे फिक्का बोलना बुझ ना सका कार होमे फिक्का बोलना इको ही प्रमाण दे के अगे चलना नानक फिक्का फिक्के बोलिया तन मन फिक्का। महाराज कहते होमे फिक्का बोल होमे नावे नाल विरोध है दोए ना वसे ए होमे हाऊ ते मैं। महाराज कहते तन पिरका एक ही संगवासा परमात्मा ते तेरे अंदर वसिया होया पर मिलाप नहीं हो रहा क्योंकि तेरे विच जीव स्त्री दे विच ते परमात्मा दे विच एक दीवार है। तन पिरका एक ही संगवासा विच होमे भीत करारी ए होमे दी दीवार नहीं तेनू कहंदे जिहड़ी है ओदे नाल कहंदे मिलन दे रही। होमे फिक्का बोलना बुझ न सका कार वण त्रिन त्रिभवन तुझे ध्याएंदा। ये सारी सृष्टि जिहड़ी है ना तुसी रोजाना एक पौड़ी एक दिन दे विच 2 बार याद करदे हो उन्नू तुसी पढ़दे हो जे तुसी अभ्यासी हो। जपजी साहब सोदर कहा सो कर कहा उहदे च पंक्ति आउंदी है गावे तोहनो पौण पानी बैसंता। इस सृष्टि ते कोई भी ऐसा नहीं है जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा तैनू नहीं जप रहा। इत्थे भी महाराज फरमाउंदे वण त्रिन त्रिभवन मैं इहदे प्रमाण दे दियां इसे अखरां नूं लैके वण त्रिन त्रिभवन सब सृष्ट हर मुख हर हर नाम चविया। चविया मैंने बोलिया सारी सृष्टि जिहड़ी है अपने मूँह तो हुण गल आ गई भी हवा का किहड़ा मूँह है ना सवाल पैदा हो जाएगा। पौण पानी बैसंतर पानी का किहड़ा मूँह है। साध संगत जी उस परमात्मा दी रजा दे विच चलना ही उन्नू ध्याना है जिन्हों महाराज कहते भै विच पवन वहे सद
ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਬਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 100% ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਣ ਅਖਰੀ ਅਰਥੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗੜ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਅਗੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ 7 ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਆਤਮਾ ਦਰਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਬੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੱਬੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰ, ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸੱਬੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10:02 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ